Welcome back, everybody. This is our third class in JEE Mains previous year questions for chapter Mechanical Properties of Fluid of class 11th. Before this, we have made two videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel. Name of channel is again Point Basics, and there is a dedicated playlist. Name of that playlist is JEE Mains previous year questions. We have also started similar series for NEET aspirants, so you can also go to our playlist section, and there you can find NEET previous year question series, and all of videos with similar chapters are already available there, so you can go and check those videos out. And if you found this stuff useful, then do like these videos, share these as much as possible, and subscribe to our channel, because it helps a lot when you share and subscribe. It acts as a motivator for us. Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR code and support us with whatever amount you can. Your donations help us a lot to keep this series live, and getting a better books and better computer hardware, so that we keep on producing quality stuff for you. So with this, let's start today's video. I think in previous video we have covered up to question number 20, and here it is, I think. Yes. So this was our last question, previous videos last question, sorry. And let's start today with next question. Here it is. We have, and let me make it slightly thinner. So let's start. An ideal fluid flow, laminar flow given है यहाँ पे. Laminar flow means जो आपका liquid है वो in the form of layers flow कर रहा है through a pipe of non-uniform diameter non-uniform है. Maximum and minimum diameters are 6.4 and 4.8 centimeter respectively. तो हमें velocities का रेशियो बताना है, जो maximum and minimum velocities होंगी उसका रेशियो में बताना है. सो जो मिनिमम डायमीटर है उसको D1 ले लेते हैं, मैक्सिमम को D2 ले लेते हैं. D1 है हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं सो दैट बेटर विजिबिलिटी रहे आपके लिए. यस, तो यहाँ से जो R1 आ जाएगी इट विल बी 3.2 सेंटीमीटर. जो D2 है इट इज 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो R2 आ जाएगी इट इज 2.4 सेंटीमीटर. ये हमारे पास रेडियसेस आ जाती हैं डायमीटर से. नाउ हमें ये पता है रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है, मींस वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, और वो होता है एवी, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए सिंगल पाइप. अलग अलग अगर आप पाइप लेते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं होगा. अगर कोई एक आपके पास सिंगल पाइप है, चाहे उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितना ही वेरी क्यों ना करे, तो एवी कांस्टेंट रहेगा. सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और यहां से हमें वेलोसिटीज का रेशियो बताना है. D1 पे कोई वेलोसिटी होगी, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एवी कांस्टेंट रहता है तो एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी. यहाँ पे रेडियस ज्यादा तो एरिया ज्यादा होगा, यानी कि जो 1 वाली वेलोसिटी है, जो आपकी V1 है वो मिनिमम वाली वेलोसिटी होगी, और जो V2 है वो मैक्स वाली वेलोसिटी होगी. तो हमें मिनिमम से मैक्स का रेशियो बताना है, यानी कि V1 by V2 फाइंड आउट करना है. So V1 by V2 is equal to A2 by A1, और यहाँ से A2 एरिया होता है पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल होगा, ये R2 by R1 का स्क्वायर हो जाएगा. R2 2.4 है और वो 3.2 है, इनको आप कट करके सीधा 24 by 32 लिख सकते हो, और ये स्क्वायर में जाएगा. एंड नाउ इसको हम फर्दर कट करते हैं on 8, I think, yes, 3 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 by 60. So option A is the right answer. Next question. Water from tap emerges vertically downward with an initial speed. Initial speed given है 1 meter per second की. The section area of the tap area given है. Assume the pressure is constant throughout stream of water and the flow is streamlined. Cross section area of stream 0.5 मीटर बिलो द टैप वुड बी. तो यहाँ पे जो आपके पास
वाटर का फ्लो होगा वो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। आई थिंक वी हैव इन 2D। एंड रिवर्स इट। यस। तो वाटर का फ्लो कुछ ऐसा होगा कि जो ये इसका टॉप एरिया है, यहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है फ्लो करना नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ जाएगा, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता जाएगा। सो आपको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रोवाइडेड कि स्टार्टिंग से अगर इसका आप ए ले लेते हो और ये आप बी ले लेते हो, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, जो ये इसको आप हाइट बोल सकते हो, जो कि गिवन है 0.1 मीटर, 0.15 मीटर, 15 मीटर। यहाँ का एरिया आपको गिवन है, दैट इज 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की वेलोसिटी हमें नहीं गिवन, तो वेलोसिटी भी हमें पता होनी चाहिए और एरिया भी हमें पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वाटर है वो एक नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा जो कि नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री फॉल होगा, नॉट फ्री मींस ग्रेविटेशनल फॉल होगा। जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट तक ट्रैवल करता है, ग्रेविटी में फ्रीली फॉल करता है, फ्री फॉल होगा। और ये जो हाइट है आपके 0.15 मीटर है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, तो आप बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और वो आप कैसे करते हो? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है 2g इंटू हाइट। यहाँ पे v है b पॉइंट की वेलोसिटी, u है a पॉइंट की वेलोसिटी। सो a पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता है 1 है, सो यहाँ से v स्क्वायर आ जाता है 2, g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, h है 0.15 और 15/100 प्लस u स्क्वायर, और u की वैल्यू हमारे पास एक ही है यहाँ पे, सो ये 1 आएगा। ये यहाँ पे कट होगा, ये 3, ये 2 और 2 से 2 कट होगा। तो जो v की वैल्यू है 3 + 1 4 का रूट, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ वाटर आ गई। अब हमें ये पता है दैट av इज कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एरिया है 10⁻⁴, ऊपर वेलोसिटी है 1, नीचे एरिया हम a अज्यूम करते हैं, वेलोसिटी हमारे पास 2 है, तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ जाती है 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर के साथ मैच करता है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फ्रॉम ए पाइप कमिंग एट द रेट ऑफ 100 लीटर्स पर मिनट। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ फ्लो गिवन है 100 लीटर पर मिनट, यानी कि वॉल्यूम बाय टाइम गिवन है हमें, इट इज 100 लीटर पर मिनट। नॉर्मली जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें किस में चाहिए होता है लीटर पर सेकंड में हमें चाहिए होता है, या मीटर क्यूब, बिकॉज जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट हम एसआई यूनिट मीटर क्यूब लेके चलते हैं, तो हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लीटर टू मीटर क्यूब और मिनट टू सेकंड्स में। और जो 1 लीटर है इट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो जो v/t है इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 100 इंटू 10⁻³ और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 60। सो ये आपको कट करके मिलेगा 5/3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा एक्चुअल रेट फ्लो है, फ्लो ऑफ लिक्विड है। नाउ रेडियस ऑफ पाइप इज 5 सेंटीमीटर। रेनॉल्ड नंबर हमें बताना है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होगा। वाटर की डेंसिटी गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है। नाउ जो रेनॉल्ड नंबर होता है हमारे पास NR, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है
डायमीटर टाइम्स v यानी वेलोसिटी इंटू डेंसिटी बाय नीटा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। डायमीटर को आप 2 इंटू आर लिख सकते हो, इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी बाय नीटा। तो हमारे पास रेडियस अवेलेबल है, पाइप की रेडियस गिवन है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी, डेंसिटी हमें पता है, हियर इट इज, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमें पता है 1 मिली पास्कल। तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हमें ये पता है दैट जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला तो है वॉल्यूम पर सेकंड जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और दूसरा होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए, स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है वी टी बाय एरिया। वी बाय टी की वैल्यू, ये वी टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5/3 इंटू 10⁻³ और जो एरिया होगा, एरिया जस्ट होगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। सो आर 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। नाउ ये यहाँ पे हम कट कर देते हैं, ये आता है 5 पे, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा -3 + 4 यानी 10⁻1 हमारे पास बचेगा 1/3 पाई इंटू 5, ये इसको कट करेगा 2 पे, और वेलोसिटी आती है 2/3 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें देता है 0.2 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज जो पाई है वो 3.14 है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 9.5 आता है। हमने उसको 10 में अप्रोक्सीमेट करके 2/10 इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, ट्वाइस जो r है, r की वैल्यू 5 इंटू 10⁻², वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.2, डेंसिटी है 10⁻3, और जो हमारे पास विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है नीटा, इट इज 1 इंटू 10⁻³ मिली है, यहाँ पे स्मॉल है। सो 1 इंटू 10⁻3, तो ये -2 -1 -3 हो गया, ये -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बचता है 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20 इंटू 10⁻3, और इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया दैट इज 10⁻4। सो ऑप्शन बी है जो हमारा, वो आंसर के साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लोज इनटू लार्ज टैंक विथ फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम बाय टाइम गिवन है -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वाटर इज आल्सो लीकिंग आउट of a hole of area 1 centimeter square at the bottom. If the height of the water in the tank remains steady, then the height is, तो ये बताना है कि अगर आपके पास एक टैंकर है, एक कंटेनर सॉरी आप बोल सकते हो, उस कंटेनर के अंदर जो वाटर आ रहा है, वाटर की जो वॉल्यूम आ रही है वो इसके इक्वल है, और यहाँ पे एक होल है, उस होल से पानी बाहर भी जा रहा है, और अंदर आने का और पानी बाहर जाने की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बैलेंस है कि इसका जो लेवल है वो लेवल कांस्टेंट रहता है। वाटर का लेवल कांस्टेंट है, मींस इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू आउटगोइंग वाटर। बिकॉज आपका इनकमिंग वाटर पर यूनिट टाइम में है, तो इनकमिंग वाटर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आउटगोइंग वाटर पर यूनिट टाइम। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 10⁻⁻4, और आउटगोइंग वाटर पर यूनिट टाइम, जो आउटगोइंग वाटर पर यूनिट टाइम है, इट इज रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। सो एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये एरिया किसका है? जो आपका स्मॉल होल है उसका एरिया है, और वेलोसिटी भी किसकी है? जो इस स्मॉल होल से पानी बाहर आ रहा है।
स्मॉल होल का एरिया आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। सो यहां से जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ आउटगोइंग वाटर आ जाती है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। नाउ अब इस वैल्यू का यूज करके आपको क्या बनाना है, हाइट बनानी है। और जो हाइट कमिंग ऑफ जो हमारा टोर्सोलिस एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें अगर आप कोई होल कर देते हैं वाटर टैंक के अंदर और उससे जो पानी आ रहा है, उस पानी की जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इस हाइट पे डिपेंड करती है कि कितने हाइट से होल किया गया है। और ये वेलोसिटी होती है, नॉर्मली ये इक्वेशन आपको पता भी है, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से आती है, v इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ से v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2gh के, और h की वैल्यू आ जाती है v स्क्वायर बाय 2g। v की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, 2 इंटू जी 10 है, ये आगा 1/20 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ पे जी की वैल्यू इन्होंने 9.8 ली होगी, सो ये 5.1 सेंटीमीटर हो जाता है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Top of a water tank is open to air and water level is maintained. It is giving out 0.7 meter cube water per minute through a circular opening of 2 centimeter radius in its wall. The depth of the tank of the water from the water level is close to. तो ये बोला गया है कि एक 2 सेंटीमीटर रेडियस की ओपनिंग है जिससे इतना वाटर पर मिनट बाहर आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो टैंक है उसकी डेप्थ हमें कैलकुलेट करके बतानी है। सो जो वॉल्यूम गिवन है इट इज 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट है ये हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.74/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ये वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आती है एक होल से जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता है दैट जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ये वाली, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर का यूज करके, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, इट विल बी 0.74/60 डिवाइड बाय एरिया। सो 0.74/60 पाई, 2 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो ये इस 2 इंटू 10⁻⁻2 होगा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम, सो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.74 इंटू 24 पाई इंटू 10⁻⁻3, ये वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास। नाउ अगेन, जैसे अब हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हमें ये पता है कि अगर कोई टैंकर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है और उससे किसी होल से वाटर बाहर आ रहा है, तो वो वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, उस होल की जो वाटर बाहर आ रहा है शुड बी √2gh। तो ये वैल्यू हम इसके इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहाँ से 0.74 24 पाई इंटू 10⁻⁻3, ये इक्वल टू आएगा √2gh के। और जब इसको सोल्व हम करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद जो h की वैल्यू आती है, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 4.8 मीटर। ये जो कैलकुलेशन है ये आप कर लीजिएगा, इसमें जस्ट आपको स्क्वायर करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है और 20 से डिवाइड करना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When an air bubble of radius r rises from the bottom to the surface of the lake, यानी कि सपोज कीजिए ये आपके पास एक लेक है, ये उसका बॉटम है और ये वाटर है और यहाँ पे सरफेस है। तो उसकी रेडियस हो जाती है 5r/4, टेकिंग एटमॉस्फेयर इक्वल प्रेशर इक्वल टू 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर, यानी कि पी नोड की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर।
नाउ इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है एच रो जी। तो हाइट 10 है, वाटर के लिए डेंसिटी 1000 होती है और जी की वैल्यू 10, सो इट कम्स आउट टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो ये बताना है डेप्थ ऑफ द कॉलम और डेप्थ ऑफ द लेक वुड बी अप्रोक्सीमेटली, तो कि जो लेक है उसकी डेप्थ कितनी होगी। सो स्टार्टिंग में आपका बबल यहाँ पे है और उसकी रेडियस गिवन है r, और उसके बाद बबल ऊपर आ जाता है और उसकी रेडियस हो जाती है 5r/4। सरफेस टेंशन को इग्नोर करना है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इग्नोर करना है। मींस अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को इग्नोर करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपके पास गैस इक्वेशन होती है जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीवी इज कांस्टेंट। अब जो बबल है यहाँ पे, बिकॉज ये एयर बबल है तो इसके अंदर यहाँ पे भी एयर होगी, यहाँ पे भी एयर होगी। सो यहाँ पे भी कुछ एयर का प्रेशर होगा और यहाँ पे भी कुछ एयर का प्रेशर होगा। अब वी ऑलरेडी नो कि जो एयर बबल होता है, एयर बबल के अंदर का प्रेशर, प्रेशर इनसाइड बबल क्या होता है, प्रेशर आउटसाइड प्रेशर प्लस, यहाँ पे हम आउट लिखते हैं बिकॉज हम जीरो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पी आउट प्लस जब आपका एयर बबल लिक्विड के अंदर है तो वहां पे एक फ्री सरफेस होगा, सो इट कम्स आउट टू बी 2s/r। और जब वो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है तब होगा, ये सरफेस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आउट आउटर प्लस 4s/r, वेयर एस इज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को भी इग्नोर करना है तो ये वाली टर्म भी इग्नोर हो जाएगी और ये वाली टर्म भी इग्नोर हो जाएगी। तो जब आपका लिक्विड बबल, सॉरी, जब एयर बबल पानी के अंदर था तो उसका प्रेशर कितने के इक्वल है, पी आउट की तरह। मींस यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है, बबल के बाहर जो प्रेशर है वही अंदर का प्रेशर है, और पानी बबल के बाहर का प्रेशर कितना होगा, अगर हम ये इसको डी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा डी रो जी प्लस पी एटमॉस्फेरिक। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा सरफेस प्रेशर प्लस डी रो जी। एंड और जब बबल आपका सरफेस पे होगा, सरफेस पे तो बाहर यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो जस्ट एयर के प्रेशर के इक्वल होगा और वो कितना है, पी नोड है। सो हमारे पास दोनों लेवल पे प्रेशर आ गया। अब हमें दोनों लेवल की वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम जस्ट हमें पता है, यहाँ पे होगी 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे 4/3 पाई इंटू 5r/4 का होल क्यूब। सो वैल्यूज पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। सो पहले हम बॉटम वाला लिखते हैं। बॉटम पे प्रेशर है पी नोड प्लस डी रो जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और टॉप पे जो प्रेशर है इट इज जस्ट पी नोड इंटू 4/3 पाई। वॉल्यूम का हम क्यूब करेंगे तो ये 125 सो ये हो जाएगा 125/64 आर क्यूब। नाउ 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, और यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बचता है इट कम्स आउट टू बी पी नोड प्लस डी रो जी इज इक्वल टू 125/64 इंटू पी नोड। और यहाँ से हम पी नोड को वैल्यू को सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो डी रो जी है ये हो जाएगा 125/64 माइनस 1 पी नोड, तो ये हो जाएगा डी रोज जी। तो ये इसमें से आप एलसीएम लेके माइनस करेंगे 64, तो ये बचेगा 61 इंटू पी नोड। और पी नोड क्या है हमारे पास 10, ये रो है, ये हाइट थी, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है,
और ये है हमारे पास ग्रेविटी। सो हम इसकी वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे पुट करते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 10 और डेंसिटी हमारे पास है 1000, जो कि हम इसको सीधा रो लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी हम डेंसिटी को रो ही लिख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा इनटू जी। तो ये हमारे पास ऐसे कैंसिल हो जाता है रो जी। सो सिंपली जो डी है डेप्थ की वैल्यू आ जाती है 610/64 और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं, अगर ये 640 होता तो 10 आता, तो ये 9 समथिंग आएगा, 9.5 मीटर। और ऊपर जाके हम चेक करते हैं अगर, सो हियर इज ऑप्शन डी, ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। Two tubes of radii R1 and R2 and lengths L1 and L2 respectively are connected in series in a liquid flow through each of them. Streamline condition P1 and P2 are the pressure difference across the tubes. P2 is 4P1 and L2 is L1 by 4. Then the radius R2 is equal to. तो हमारे पास दो रेडियस है R1 R2, दो लेंथ है हमारे पास L2 एंड L1 by 4। ओके, ये L1 है नॉट L2, L1 एंड L1 by 4। और दो प्रेशर गिवन है हमें P1 P2, और जो P2 है वो 4P1 है, यानी कि ये P1 है और ये 4P1 है। ये हमारे पास सभी की सभी वैल्यूज गिवन है। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये बताना है कि जो रेडियस है वो रेडियस का रेशियो क्या रहेगा, R1 by R2, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या रहेगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट जो टाइम होती है उसका रिलेशन होता है हमारे पास AV, वॉल्यूम यूनिट पर यूनिट टाइम। और एक और इसका रिलेशन होता है हमारे पास, दैट इज पाई P R4/8 नीटा L। ये लेंथ की टर्म्स में और रेडियस की टर्म्स में रिलेशन होता है, प्रेशर की टर्म्स में रिलेशन होता है, और ये भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट पाई P1 R14/8 नीटा एज इट इज L1 इज इक्वल टू पाई P2 R24/8 नीटा L2। बिकॉज सेम लिक्विड फ्लो हो रहा है तो नीटा सेम रहेगा, तो 8 नीटा से 8 नीटा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट R1/R2 पावर 4 इज इक्वल टू P2/P1 इंटू L1/L2। जो P2 है इट इज 4P1, तो P2/P1 हमारा हो जाएगा 4, और L1/L2, ये L1 है ये L2 है, सो L1/L1 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। सो R1 R2 की पावर 4 इज 16, तो R1/R2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाती है इज R1/2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर consider a water jar of radius R that has a water filled up to height h height तक water filled है। यहाँ पे हमारे कुछ options hide हो गए due to I think page limitation, and it kept on stand at height h। तो ये वाली height h है आपकी as per mention, और यहाँ पे already mention है कि ये वाली height हमारे पास small h है। Water leaks out, the stream of water coming towards the ground has a shape like funnel as shown in the figure. If the radius of cross section of water stream when it hits the ground is x, then x और r का हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं A पॉइंट, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं B पॉइंट, जहाँ से वाटर आउट करना स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे फाइनली हमारा जो C पॉइंट है हम इस पॉइंट के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम A और B पॉइंट को कंपेयर करेंगे, फिर B और C पॉइंट को कंपेयर करेंगे, और फिर फाइनली तीनों पॉइंट्स को एक साथ कंपेयर करेंगे। सो अगर A और B पॉइंट पे हम बर्नौली थ्योरम लगाएं तो A पॉइंट के लिए हम अभी B, जो ये हमारा B पॉइंट अगर हम इसको ग्राउंड मान के चलें तो A पॉइंट के पास हमारे पास हाइट है, और यहाँ पे बिकॉज जो एरिया है
एज पर गिवन कि जो ये और ये वाली आर है ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस रेडियस, तो यहाँ पे लिक्विड ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगा, यहाँ पे लिक्विड के पास वेलोसिटी होगी। तो ए पॉइंट पे लिक्विड के पास वेलोसिटी तो नहीं होगी बट हाइट होगी, और बी पॉइंट पे लिक्विड के पास हाइट नहीं होगी, ओनली वेलोसिटी होगी। तो ए पॉइंट पे होगी ओनली, आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, और बी पॉइंट पे होगी ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो जो बर्नौली थ्योरम है उसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। पहली होती है प्रेशर, दूसरी होती है हाफ रो जी हाफ रो वी स्क्वायर, और थर्ड होती है रो जी एच, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बिकॉज ए पॉइंट है, ये भी यहाँ पे एयर को टच करने वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी एयर वाटर का सरफेस है, और जो पानी है आपका यहाँ बी पॉइंट से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ भी ये एयर के अंदर ही है। तो दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर है हम इक्वल लेके चलेंगे। जो बी पॉइंट है ये आपका अंदर नहीं है, अगर इसको आप कंटेनर के अंदर लोगे तो आपको यहाँ पे एच रो जी वाली टर्म ऐड करनी पड़ जाएगी, ठीक है। सो ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही है, वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे साथ में है रो जी एच जो कि हाइट की वजह से टर्म आ रही है, इक्वल्स टू, अगर सेम इक्वेशन को बी पॉइंट के लिए लिखें तो यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही है, प्लस बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी तो उसको हम रो वी स्क्वायर बोल देते हैं, और यहाँ पे हाइट हम 0 मान रहे हैं, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो वी बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2gh। नाउ सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट के लिए कैलकुलेशंस करते हैं, बी और सी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तब हमारे पास जो सिनेरियो होगा सिमिलरली अगेन, जो दोनों एयर में है पॉइंट तो दोनों में प्रेशर तो सेम ही रहेगा, पी नोड। अब जो बी पॉइंट है वो सी पॉइंट से इतनी हाइट ऊपर है, तो उसके पास क्या हो गई, एडिशनल ये वाली एनर्जी हो गई, स्मॉल एच सॉरी, यहाँ पे ये वाली एनर्जी हो गई हाइट की वजह से, और प्लस बी पॉइंट पे वेलोसिटी भी है, और वो वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ से। सो हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू है 2g कैपिटल एच। नाउ पी नोड प्लस, अब आते हैं हम सी पॉइंट पे हाइट की वजह से कोई एनर्जी नहीं होगी, इस पे ओनली क्या होगा, वेलोसिटी होगी, तो जिसको हम वीसी मान लेते हैं, हाफ रो वी सी स्क्वायर। सो अगेन पी नोड से पी नोड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा रो जी और स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच इज इक्वल टू हाफ रो वी सी स्क्वायर। सो रो से रो कैंसिल हो जाता है, और वी सी की वैल्यू आ जाती है 2g h प्लस एच, ये आ जाती है सी पॉइंट पे जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी। नाउ वी नो दैट जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑलरेडी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मींस जितना बी पॉइंट से वाटर फ्लो हो रहा होगा उतना ही वाटर सी पॉइंट से भी फ्लो हो रहा होगा, और रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। सो जो बी पॉइंट है इस पे एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर, और जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी है दैट इज √2gh। नाउ कमिंग टू सी पॉइंट पे एरिया है पाई एक्स स्क्वायर, और जो वेलोसिटी हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं √2g स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। सो पाई से पाई कैंसिल होता है यहाँ से, और √2g से √2g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी √2g से कैंसिल होगा, और यहाँ पे √h तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचता है h प्लस एच। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r √h बाय स्मॉल h प्लस कैपिटल H का रूट, और अगर इसको फर्दर यूज करें x की वैल्यू हो जाएगी √r, और यहाँ पे हाफ पावर ऑलरेडी है तो 1 पावर 1/4 हो जाएगी। So here it is, option A. Yes, option A is the right answer.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इट टेक्स 5 minutes to fill a 15-liter bucket from a water tap of diameter 2 by root pi centimeter. So time given है 5 minute, वॉल्यूम गिवन है 15 लीटर। तो 5 मिनट में 15 लीटर वॉल्यूम हम फिल करते हैं। और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर गिवन है 2 बाय रूट पाई, और डायमीटर से हम रेडियस बना सकते हैं, तो रेडियस हो जाएगी इसका हाफ यानी कि 1 बाय रूट पाई। देन द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो डेंसिटी, तो हमें रेनॉल्ड नंबर बताना है। डेंसिटी गिवन है और विस्कोसिटी गिवन है, तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है अगेन आर डी, ये गिवन हो दिया जाता है रो वी डी बाय नीटा। रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी डायमीटर है और नीटा विस्कोसिटी है। नाउ हमारे पास रो की वैल्यू है, डेंसिटी है, नीटा की वैल्यू हमें गिवन है, डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, जस्ट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो जो वेलोसिटी है इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज कैपिटल वी हमने वॉल्यूम के लिए यूज किया है। तो जो वॉल्यूम है यहाँ पे कितना है, ये 15 लीटर है 5 मिनट में, यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम बाय टाइम क्या हो जाएगा 15 लीटर, यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 10 पावर -3 बाय 5 मिनट है तो 300, ये आ जाता है वॉल्यूम पर सेकंड हमारे पास आ जाता है। तो इसको आप ऐसे 5 इंटू 10 पावर -5 लिख सकते हो। और वॉल्यूम पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो के इक्वल होता है, ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज 5 इंटू 10 पावर -5। अब एरिया हो जाएगा आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 बाय पाई, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 1 बाय पाई ही मिलेगा, इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -5। सो कैंसिल करके वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5 इंटू, ओके यहाँ पे हमने मिस्टेक करी, ये यहाँ पे हमारी एक पावर मिसिंग होगी, बिकॉज ये जो आर था हम ये लिखना भूल गए कि ये सेंटीमीटर में है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसका सेंटीमीटर का भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 है तो ये -4 हो जाएगा, और अगर ये -4 होगा तो ये उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, सो ये आ जाएगा -1। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। और जब अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है तो ये हो गया विस्कोसिटी 10 पावर -3, वेलोसिटी 5 इंटू 10 पावर -1 एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 बाय रूट पाई है, तो अगेन इसको सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय नीटा, नीटा इज 10 पावर -3, ओ सॉरी डेंसिटी +3 है, यस। तो ये -2 ये -3 ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये आपको देगा 10, और ये 10 रेज़ टू पावर 4 बाय रूट पाई। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 बाय रूट पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपको मिलेगा 5.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 5640, और जिससे हमारा नियरेस्ट आंसर मैच होगा दैट इज ऑप्शन डी 5500, ये हमारा नियरेस्ट आंसर मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An open glass tube is immersed in mercury in such a way that length 8 meter extend above the mercury level। mercury level के ऊपर हमारी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। The open end of the tube is then closed and sealed, and the tube is raised vertically up by additional 46 सेंटीमीटर। तो उसको और 46 सेंटीमीटर हम ऊपर लेके जाते हैं। What will be the length of the air column above the mercury now? तो अब ये बताना है कि जो मरकरी है उसकी एयर कॉलम के ऊपर लेंथ कितनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, सपोज ये हमारे पास कॉलम है जिसके अंदर मरकरी है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट यूज कर पाए, और पेस्ट कर देते हैं सेकंड केस के लिए।
तो ये हमारे पास दो केसेस है। पहले में जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब को मरकरी के अंदर डाला गया है। ये हमने एक ट्यूब ले ली और इसके अंदर हमने उसको मरकरी के अंदर डाल दिया। अब जो मरकरी है ये 8 सेंटीमीटर तक जाता है। नॉट 8 सेंटीमीटर, आई थिंक, वेट अ मिनट। सो जो मरकरी है इनिशियल सिनेरियो में 8 सेंटीमीटर ऊपर तक चला जाता है, यहाँ तक आ जाता है मरकरी। तो इनिशियल जो हाइट है मरकरी की सरफेस से ऊपर वो 8 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करते हो, इसके जो ट्यूब है आपकी इसको सील कर देते हो। यहीं पे इसको आपने सील कर दिया और जो ट्यूब है उसको आपने एडिशनल 46 सेंटीमीटर ऊपर ले गए। तो ये कुछ आपकी ऐसे ट्यूब हो जाती है यहाँ पे टोटल। और इसके अंदर अभी भी मरकरी है बट अब हमें इसका लेवल नहीं पता। सपोज ये इतना लेवल है अभी मरकरी का। पहले ट्यूब 8 सेंटीमीटर बाहर थी और अब कितना है, उसको आपने 46 सेंटीमीटर टोटल बाहर ले लिया। तो अब वो टोटल हाइट कितनी होगी, 46 प्लस 8 जो कि होता है 54 सेंटीमीटर। सपोज इसमें से मरकरी है जो x है, तो जो रिमेनिंग पार्ट हो गया जहां पे एयर है इट इज 54 माइनस x, ये हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हम जो मरकरी का लेवल है इसके ऊपर लेते हैं और एक पॉइंट सेम हाइट पे हम ट्यूब के अंदर लेते हैं। बिकॉज दोनों जो आपके पॉइंट है वो सेम हाइट पे है, तो दोनों पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए। अभी जो बाहर वाला पॉइंट है इस पे प्रेशर हो जाएगा P एटमोस्फियर, बिकॉज ये मरकरी के सरफेस पे है। और जो ये अंदर वाला पॉइंट है इस पे जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे जो एयर है उसकी वजह से प्रेशर प्लस ये हाइट है जो इसकी वजह से प्रेशर। तो मान लो यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर P है। पहले तो यहाँ पे जो एयर थी इसका प्रेशर P नोड था बिकॉज ये ओपन थी। अब यहाँ पे प्रेशर P हो गया और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। सो जो ये वाला पॉइंट है इस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस हाइट है x, डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू ग्रेविटी। ये प्रेशर हो जाएगा इन दोनों के लिए। मींस ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, अब इक्वल होने चाहिए। जो P नोड है अगर इसको मर्करी की टर्म्स में लिखा जाए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 mm ऑफ मर्करी होता है जो यहाँ पे गिवन भी है। तो P नोड क्या होगा, 76 रो m इंटू जी। और ये mm है, सॉरी सेंटीमीटर है। तो जो अब यहाँ पे हम x की मेजर कर रहे हैं वो भी हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। इज इक्वल टू P प्लस x रो मर्करी, सॉरी यहाँ पे हम m लिखेंगे g। तो जो P है, P की वैल्यू आ जाती है 76 माइनस x मर्करी की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ये हमारे पास एक P के लिए वैल्यू बन जाती है, फॉर्मूला बन जाता है। नाउ बिकॉज जो पूरा सिस्टम सिनेरियो है वो एक रूम टेम्परेचर पे किया गया होगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट में जो गैस इक्वेशन होती है आपके पास, बिकॉज यहाँ पे हम एयर के लिए सोल्व कर रहे हैं, गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे पीवी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, अगर पीवी कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो पीवी है और यहाँ पे जो एयर के लिए पीवी है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एयर के लिए प्रेशर है दैट इज पी नोड इनटू गैस की जो वॉल्यूम है। बिकॉज ये बोला गया है कि जो मर्करी है, सॉरी जो ट्यूब है वो 8 सेंटीमीटर अबव द मर्करी लेवल है। मींस जो आपका ट्यूब का जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर अबव द मर्करी लेवल है। तो इसका अगर ट्यूब का एरिया हमने ए मान लिया, दोनों जगह पे एरिया कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इनटू हाइट जो कि यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। दूसरे केस में प्रेशर हमें हमारे पास है 76 माइनस एक्स इंटू मर्करी इंटू जी। और यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर है इट विल बी एरिया इंटू 54 माइनस एक्स, एरिया इंटू 54 माइनस एक्स। सो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। और जो पी नोड है, अगेन पी नोड की वैल्यू हमें पता है, पी नोड क्या है 76 इंटू रो एम इंटू जी इज इक्वल टू 76 माइनस एक्स रो एम जी इंटू 54 माइनस एक्स। सो रो एम से ये रो एम कैंसिल हो गया यहाँ पे,
और ये हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 76 is equal to 76 minus x is into 54 minus x। so और साथ में यहाँ पे 8 भी है, सॉरी ये 8 हम मिस कर गए। 76 into 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देता है 608, इनको मल्टीप्लाई करके आता है 4104 माइनस 54x माइनस 76x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। सो जो आपकी एज ए होल इक्वेशन बन जाती है, इट इज x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 3496 इज इक्वल टू 0। और जब इसको आप सोल्व करते हैं तो x की वैल्यूज आती है -92 एंड 38। सो नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 38 आंसर होगा। और हमने x की वैल्यू 38 निकाल ली, तो जो एयर कॉलम है इसकी वैल्यू हो जाएगी 54 माइनस 38, इट कम्स आउट टू बी 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम कंपेयर करें तो जो ऑप्शन ए है हमारा, ये आंसर के साथ मैच करता है। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और इसने आपकी नॉलेज को इम्प्रूव किया होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड do consider sharing this video, subscribing to our channel, and if possible do make some donation. It helps a lot to keep this channel alive and this video series going. So with this, thanks for watching. We will meet in next video.